Friends, today I will tell you the summary of the lesson The Best Christmas Present in the World. I hope you all have already gone through this lesson and made your notes also. But for your proper understanding, I am here to tell you the summary in Hindi and English both for your proper understanding. So, let's start. The story The Best Christmas Present in the World begins with the author making a decision about buying an old roll top desk which is in a bad condition. He had longed for one since long, and he was also confident that he could restore it. Thus, he takes the desk home, and as he starts working on it on the eve of Christmas, he finds a secret drawer that carried a letter addressed to some woman named Connie from her husband Jim. It said that it was his last letter and was dated December 26, 1914. It was written at the time of the war between Germany and Britain. It enlisted the series of events that followed on the day of Christmas that year, 1914, are a wonderful things that happened. In the words of Jim, he wrote about how the two armies that came together to celebrate the spirit of Christmas despite belonging to different nations, different enemy nations. They forgot about their differences for a while and realized that they had much in common. They shared snaps, sausages, and rum. The two officers, Jim and Hans Wolf, developed a good bond over a chit chat. They both were of the view that countries should negotiate peacefully and resolve conflicts by playing football or cricket. The soldiers played football that day, and when all their supply of food and drinks was finished, they knew it was time to return back to their own trenches. That night, they exchanged Christmas carols. As Jim tells Connie about the day in his letter, he assures Connie of their reunion next Christmas. The author who read this letter thought he should reach out to Connie. He finds the address mentioned on the envelope and discovers that the house had been burned, and Connie, 101 years old lady, now lived in a nursing home. He visits the nursing home and hands over the letter to Connie, who is immensely overjoyed on reading the letter. She misunderstands the author to be her husband, Jim, and calls him the best Christmas present in the world. So, this is the summary of this lesson in English. Now, I am going to tell you the same summary in Hindi, so that you can understand it very easily without any problem. So, let's start. जो लेखक था वो एक बार एक कबाड़ी की दुकान पर गया जो कि ब्रिडपोर्ट में थी। कहाँ थी? ब्रिडपोर्ट में। और वहाँ उन्होंने एक मेज़ देखी जिसका ऊपरी हिस्सा खिसक जाता था।
यह बहुत पुरानी मेज़ थी जो ओक एक प्रकार की लकड़ी होती है, उसी लकड़ी की बनी हुई थी। उस मेज़ के एक हिस्से में जलने के दाग थे। चूँकि उस मेज़ की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी और यह काफ़ी सस्ती दिखाई पड़ती थी, इसलिए लेखक ने उसे खरीदकर उसकी मरम्मत कराने का विचार कर लिया। लेखक ने उस मेज़ की मरम्मत का कार्य क्रिसमस से एक दिन पहले शुरू किया था। लेखक ने उस मेज़ के ऊपरी हिस्से को, जो कि खिसक जाया करता था, उसे हटाया व उसकी दराज को, ड्रॉर को बाहर निकालने का प्रयास किया। उस मेज़ की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उस पर आग और पानी के दाग थे। दराज मेज़ में फंसकर बंद हो गया था। काफ़ी एफ़र्ट करने के बाद, काफ़ी प्रयास करने के बाद लेखक ने उसे खींचकर बाहर निकाला। तभी लेखक को उसमें एक गुप्त, एक सीक्रेट ड्रॉर दिखाई पड़ी। उस ड्रॉर में एक छोटा टीन का काला ब्लैक बॉक्स था। उसी में उसे बाहर निकाला। उस डिब्बे पर लिखा था जिम का अंतिम पत्र, जिसे 25 जनवरी 1915 को प्राप्त किया गया था। उस पत्र के लेखक ने उस पत्र में अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि इस पत्र को उसकी कब्र के साथ ही दफना दिया जाए। लेखक ने उत्सुकतावश यह डिब्बा खोल लिया। उस डिब्बे में लेखक को एक लिफाफा मिला जिस पर पता लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकफर्सन। मिसेस जिम मैकफर्सन मतलब कोनी मैकफर्सन। उनका एड्रेस क्या था? 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। उस पत्र में 26 दिसंबर 1914 पर की तारीख लिखी हुई थी। यह पत्र जिम ने अपनी पत्नी कोनी को लिखा था। जिम एक सैनिक था। जिम मैकफर्सन क्या था? एक सैनिक था जो प्रथम महायुद्ध में, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसमें जर्मनी के अगेंस्ट उसने लड़ाई की थी। जिम जो है बहुत खुश था क्योंकि वहाँ एक हैरान कर देने वाली घटना घटी थी। और वो घटना क्या थी? जो सभी सैनिक थे उन लोगों ने खाइयों में अपने छिपने का स्थान बना रखा था। यह क्रिसमस की ठंडी सुबह थी। जिम ने देखा कि जर्मन सैनिक जो थे वो सफ़ेद कलर का झंडा लहराकर अंग्रेज सिपाहियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देने के लिए पुकार रहे थे। और इधर क्या देख रहा है जिम कि जो अंग्रेज सिपाही थे, उसकी तरफ के जो सिपाही थे, उन लोगों ने भी उसको हाथ उठा करके या झंडा उठा करके उनका जो अभिवादन था, उनकी जो विश थी, उसको एक्सेप्ट किया। और उसके बदले में उन लोगों ने भी जर्मन सैनिकों को विश किया। दुश्मन होकर भी मित्रों की तरह अभिवादन करना एक दूसरे को, यह एक बहुत बड़ा आश्चर्य था। जो जिम इसको देख करके बहुत ही प्रभावित हुआ। और यह कोई साजिश नहीं थी। पहली बात तो जिम को ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो हैप्पी क्रिसमस विश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है हम लोग जब घुल मिल जाएं तो उस समय ना अटैक कर दें। लेकिन देयर वाज नो कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड दिस एक्टिविटी। ये कोई साजिश नहीं थी, बल्कि ये एक सच था। वे वास्तव में क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते थे और क्रिसमस विश करना चाहते थे एक दूसरे को। अंग्रेज सैनिक भी उनका अभिवादन कर रहे थे। जर्मन सैनिकों के नायक ने कहा, जो उनका हेड था, हम लोग तुम्हारे साथ मिलकर क्रिसमस का त्यौहार मनाना चाहते हैं। जर्मन सैनिकों का जो हेड था उसने जिम से कहा कि हम लोग तुम्हारे साथ मिल कर के क्रिसमस, भले ही हम लोग यहाँ लड़ने के लिए आए हैं आपस में, लेकिन आज क्रिसमस का दिन है। आज हम लड़ाई जैसी कोई बात नहीं करेंगे। आज हम केवल एक दूसरे के साथ मिल कर के क्रिसमस का जो त्यौहार है उसको सेलिब्रेट करेंगे। जिम जो था वो भी एक ऑफिसर था अपने सेना की तरफ से। उसने जर्मन सैनिकों के साथ त्यौहार मनाने की अनुमति दे दी। उसने देखा कि जब जर्मन सैनिक हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं और इसके पीछे उनकी कोई कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र नहीं है, तो जिम ने भी अपने सैनिकों को, अंग्रेज सैनिकों को भी परमिशन दे दिया कि आप लोग भी जर्मन सैनिकों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकते हैं। वे सभी बीच के एक खाली स्थान में मिले।
युद्ध के दौरान वे सभी शांति का पाठ पढ़ रहे थे। सबसे पहले जो जर्मन सैनिक आगे आया उसका नाम था हंस वुल्फ। हैंस वुल्फ सेना में भर्ती होने से पहले ऑर्केस्ट्रा में एक इंस्ट्रूमेंट था, उस इंस्ट्रूमेंट को बजाया करता था, वो प्ले करता था। और जिम क्या था सेना में भर्ती होने से पहले? एक स्कूल में टीचर था। मतलब बोथ ऑफ देम बिलोंग टू डिफरेंट ऑक्यूपेशन इन विच दे वर मोर इंटरेस्टेड। लड़ाई करने में किसी का इंटरेस्ट नहीं होता। आप देखिए जिम का जो पेशा था सेना में जो आने से पहले वो एक टीचर था, और हैंस वुल्फ क्या था? ऑर्केस्ट्रा में एक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर था। और जिम स्कूल में टीचर था। हैंस वुल्फ ने झूठ बोला था कि वह डोरसेट को जानता है। डोरसेट एक जगह है, जबकि उसने इस स्थान के बारे में टॉमस हार्डी के एक उपन्यास फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड में पढ़ा था। इसके पहले वो डोरसेट जानता ही नहीं था। जो ये उपन्यास है, जो ये नॉवेल है टॉमस हार्डी का, उसमें डोरसेट जगह का जिक्र किया गया है। वही उसी नॉवेल के थ्रू हैंस वुल्फ इस जगह को जानता था। उस शाम सभी विरोधी सैनिकों ने एक साथ मिलकर धूम्रपान, मतलब स्मोकिंग, जिस तरह से एंजॉयमेंट वो कर सकते थे उन लोगों ने किया। साथ में खाना भी खाया, खूब एंजॉय किया। जिम ने अपने पत्र में लिखा कि उसने इस प्रकार की क्रिसमस पार्टी न कभी देखी थी और न कभी ऐसी पार्टी की कल्पना ही की थी। मतलब सेनाओं के बीच में पार्टी, ये तो एक आश्चर्य की बात है ही बच्चों। तो जिम को भी एक आश्चर्य ही लग रहा था, और इसीलिए बहुत खुश होकर के उस लेटर में उसने अपनी पत्नी को ये बताने की कोशिश की थी कि वो कितना खुश था उस दिन, जब दो विरोधी सेनाओं ने मिलकर के एक साथ क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट की थी। जिम ने अपने पत्र में लिखा था उसने इस प्रकार की क्रिसमस पार्टी न कभी देखी थी और न कभी ऐसी पार्टी की कल्पना ही की थी। सभी सैनिकों ने मिलकर फुटबॉल मैच भी खेला। केवल खाना ही नहीं खाया बल्कि बाद में फुटबॉल मैच भी खेला साथ में। दोनों सैनिक इस विषय पर एक मत थे कि उन्हें फुटबॉल या क्रिकेट मैच खेल कर ही इस झगड़े को सुलझाना चाहिए, क्योंकि इस खेल में न कोई व्यक्ति मरता है और न ही कोई परिवार अनाथ होता है और न ही कोई अपने पीछे विधवाओं को छोड़ कर जाता है। बच्चों, बहुत ही प्यारा मैसेज इस लेसन में हम लोगों को मिला है कि अगर ये जो लड़ाइयाँ होती हैं देशों के बीच में, ये देशों के अहंकार और स्वाभिमान को लेकर के होती हैं। लेकिन अहंकार और स्वाभिमान किसी का होता है और मरता कौन है, लड़ता कौन है देश के लिए, अपनी जान कौन गंवाता है? सैनिक। और वो सैनिक जब मर जाता है तो उसके मरने के साथ ही उसका परिवार अनाथ हो जाता है, और परिवार अनाथ होता है, उसके बच्चे बेसहारा हो जाते हैं, उसकी पत्नी भी बेसहारा हो जाती है। इसलिए वे लोग इस फेवर में थे कि ये जो युद्ध होता है, युद्ध न लड़ करके किसी फुटबॉल मैच या क्रिकेट मैच से उसका जो भी विवाद हो, जो भी डिस्प्यूट हो इंटरनेशनल, उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और ठीक भी है, अच्छा मैसेज है। और खेल समाप्त होता है। जो खेल हो रहा था उन दोनों सेनाओं के बीच में, वो खेल समाप्त होता है। वह इसी के साथ भोजन भी थम जाता है। जिम जो है वो हैंस वुल्फ से कहता है कि उन्हें उम्मीद है कि अगले क्रिसमस तक जैसे ही युद्ध समाप्त होगा कि वह सभी क्रिसमस पर अपने परिवारों के साथ होंगे। और ऐसा कह करके जो है हैंस वुल्फ चला जाता है। अब लेखक जो कि उस पत्र को पढ़ रहा है, जिसने ड्रॉर से उस पत्र को निकाला था, वो उस लेटर को पढ़ करके वो भी इमोशनल हो गया
और सोचता है कि उसके पति ने, जिम ने जो पत्र लिखा है वो उस पत्र को ज़रूर कोनी मैकफर्सन के पास तक पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी उस पत्र को पढ़ करके बहुत ही इमोशनल हो जाता है। लेखक जो है पत्र को लिफाफे में रखता है तथा ब्रिडपोर्ट की तरफ चल देता है। वह चाहता है कि वह इस पत्र को कोनी मैकफर्सन को सौंप दे। इस समय कोनी की उम्र कितनी वर्ष थी बच्चों? 101 साल, 101 वर्ष की थी। उसके घर में आग लग गई थी, परंतु वो बच गई थी, किसी तरीके से बचा लिया गया था। इस समय वह किसी हॉस्पिटल में थी। लेखक ने जो है कोनी को हैप्पी क्रिसमस बोला तथा उसे वह पत्र सौंप दिया। उसने कोनी को वो पत्र दे दिया जो कि कोनी के हस्बैंड ने उसको लिखा था। कोनी ने पत्र पर लिखे अपने पति के अक्षरों को पहचान लिया और वो बहुत खुश हो गई। उसने लेखक को ही अपना पति समझ लिया। उसने सोचा, कोनी ने बूढ़ी हो गई थी, नहीं समझ में आया उसको। उसने गलती से समझा कि जो लेखक महोदय हैं जो पत्र लेकर के आए हैं यही मेरे पति हैं। और समझ लिया, जिसने वादा किया था कि वह क्रिसमस पर घर लौटेगा। उसके पति ने, कोनी मैकफर्सन के पति ने वादा किया था जिम ने कि मैं जो है अगले क्रिसमस तक घर पे वापस आ जाऊंगा। तो उसने सोचा, कोनी ने, हो सकता है मेरे पति ही आ गए हों। उसने लेखक को किस किया तथा उसी को कहा कि आप ही पत्र पढ़ के सुना भी दो। वह अपने पति की आवाज़ सुनना चाहती थी। उसने लेखक को अपना पति मान लिया था और वो अपने पति की आवाज़ को सुनना चाहती थी। वह बोली कि उसका पति जिम स्वयं ही उसके लिए क्रिसमस का सबसे अच्छा उपहार था। मतलब नो अदर थिंग इन द वर्ल्ड was so precious for her than her husband Jim McPherson. So this is the end of the Hindi summary of the lesson The Best Christmas Present in the World. And I hope that you all have understood it very clearly, and if you have any problem then you can discuss in the group, and I will sort out your problem in the next video. And in the tomorrow or the day after tomorrow I will give you the Hindi and English summary of the next lesson. Thank you so much.